Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. okay, dear. So, ह्यूमन इंजीनियरिंग, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कैसे कैसे होता है? So, this we have studied in our previous lecture. Now, this lecture we will see what is exactly ergonomics, how this word came into picture, when it came into picture, and what is the exact meaning of that word, and what are the objectives of this ergonomics, and how it has a multi-dimensional approach, or we can say it is multidisciplinary approach, and what is exactly its background, how it originates and when it originates actually. So moving ahead with the lecture slide. So we know what is exactly ergonomics. We have already discussed in the previous lecture that it is a relation between man and machine, and it has been derived from two Greek words, that is ergon and nomos. The ergon means work and nomos means laws. This is the we can say combinedly it is the law of doing work. Basically, this work is we are dealing with industrial work, so it is more on industrial work rather on uh, this housework and other personal works. So as I told you, every country has a different name to call it. So ergonomics, ergonomics we call European people used to call it ergonomics, and we Indian also used to call it, because हमको जो इंजीनियरिंग और जो अप्रोचेस मिली हैं इंजीनियरिंग की, वो मोस्टली यूरोपियन पीपल से मिली, क्योंकि ब्रिटिश पीपल ने हमको रूल किया था एक समय. सो बाकी अदर कंट्रीज में ह्यूमन इंजीनियरिंग या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग के नाम से भी ये जाना जाता है. Now let us discuss with the objectives. It has some features to discuss in objectives. The main purpose of or ergonomics is to take care of certain features into the interface. The interface is what? Interfaces between the system and the end user. Now, what are those features like? We need to increase the efficiency of the system. That is for true, because we need productivity. Another thing, we need to increase the effectiveness of the system. It happens. Next is, because of all the two these both 2 points, as we have discussed, increasing the efficiency and effectiveness would definitely increase the convenience of the use, which reduces the errors occurred during the inside the working system, and this will certainly increases the productivity part. Now, the last but not the least, the working system should have, the desirable features of human values, and which includes like safety, stress level, fatigue, and overall improvement in the quality of life, because uh, that is untangible impact on the productivity. One may understand the exact impact on the productivity by doing the well-being of humans. We are saying humans here for the staff worker or laborers, whosoever is employed on a particular system or machines. Okay. Now let us see the multidisciplinary views of ergonomics. Ergonomics has certain other disciplines. माने ergonomics जिसे हम कहें कि बहुत सारे डिसिप्लिन से मिलके बनी है. इसमें first of all is engineering, because engineering does the study work. Engineering involves, it is basically the study work of basic functional aspect of the system. So first of all, we need to understand the basic functional aspect of the system, which human has to take care of. Okay, यहाँ तीन चीजें हैं: मैन, मशीन, मटेरियल. मशीन जिस पे डील करना है, मैन जो कि डील करेगा, और किससे डील करेगा? मशीन से काम कराएगा. किससे काम कराएगा? जॉब पीस पे या मटेरियल पे काम कराएगा. तो मैन, मशीन, मटेरियल तीन चीजें हैं. इंजीनियरिंग डील्स विद द इंजीनियरिंग नॉलेज of
मैन मशीन एंड मैन एंड मशीन, सॉरी मशीन एंड मटेरियल, ठीक है। द फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिकोलॉजी और इंडस्ट्रियल, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और साइकोलॉजी ये जो है ह्यूमन की है, और इंडस्ट्रियल हाइजीन माने हमारे आसपास का स्पेस वेयर एग्जैक्टली human has to work, that should be hygienic. That hygienic is not just for the human being, it is also a hygiene for the machine also and material also. Like अगर एक टेबल पे बहुत सारी चिप्स रखी हैं, तो one has to clean that table, and on top of that only you can put your material. If chips are there and if you are not clearing it, and on top of it you are placing a job, then operation जो होगा वो proper तो नहीं हो सकता. So industrial hygiene is not only for operator or human. Industrial hygiene deals with overall environment of the industry, or overall environment of the interface, we can say. Okay, now let us understand what these three terms are. Ergonomics, we know what these are. Environmental conditions, we know what is environmental condition. Now let us understand what is productivity is all about. ये ऐसी टर्म है जिसके पीछे ये पूरा सब्जेक्ट है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, all the time I'm using this terminology, productivity, productivity, productivity. We know in basic sense what is productivity also, but in the broader sense, as far as our mechanical engineering branch is concerned, we should understand what is exactly productivity is all about. Productivity जिसको हम हिंदी में उत्पादकता कहते हैं. So productivity is you know the इस टाइम का सबसे बड़ा जो कॉल है वो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है. सो इट इज द crying need of the modern business world. Now to reduce, and for that we need to reduce the cost of production, and to successfully face the competition either inside the nation or outside the nation. And I mean outside the nation, if our product is like international category, then it will be called as outside the territory of nation if we are dealing. So we have to face the competition, and how to face the competition, we have to put our cost down all the way and increase the productivity. Now how to do that? One has to be productivity conscious, and that productivity consciousness should exist or pop up inside the country in getting maximum utilization of available resources. And what are those resources? Those are men, machine, material. Another thing is capital and power. Capital are the capital is divided into three parts. Like the fixed capital, जो पैसा मेरा शुरू में लगा हुआ है. Fixed capital means building, machines. And एक capital होता है जो हम raw material purchase करते हैं और finished goods निकालते हैं, और एक capital होता है जो labor या man power में जाता है. तो इस तरह के तीन तरह के capital money को तीन भाग में divide किया जाता है, ठीक है. Now productivity, now let us share, I'm sharing a numerical. उसके बेस पे आपको एक बार productivity क्या है वो समझ में आएगा. Exactly, we are calculating here productivity per machine hour from the following information. Now this is the information given. Actually I forgot to put a line here. Actually from this, let me draw a line. This is the part of the question, and this is the part of solution. So I'm doing it here now. This is basically solution. Okay. So we have given that in month of January we have produced 50,000 units, and the machine hours we have used of 5,000. Similarly, in this February month we have produced 57,000 units, and we have produced by using machine hours of 6,000. Similarly, in March, what we did, we did 63,000 units production by using 7,000 machine hours. So we have this with us. इतने घंटे मशीन के हमने यूज किए और इतना हमने प्रोडक्शन किया.
सो प्रोडक्टिविटी है क्या? इट इज नथिंग बट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं इसको. And what will be the efficiency? How you are calculating? It is output upon input. And what is input? What is output? Output is like what production you did, है ना, कितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, दैट इज आउटपुट. एंड कितना इनपुट किया, दैट इज मशीन आवर. हियर इन इनपुट टर्म्स ओनली वी आर डिस्कसिंग मशीन आवर्स, है ना. इनपुट में हम मशीन आवर्स ही डिस्कस कर रहे हैं. सो से हम अगर जनवरी का निकालें तो हमने 5000 घंटे लगाए और 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, तो हमने क्या निकाला? 10 यूनिट हमने पर मशीन आवर प्रोड्यूस किया है. फिर फरवरी में हम चेक करें तो वी हैव प्लेस्ड 57,000 units and we have spent 6,000 machine hours on that. So what we have got is 9.5 unit per machine hour. Similarly, in this March, 63,000 units we have manufactured, but we have spent 7,000 machine hours. So 9 unit per machine hour we have produced. Now, if you say in terms of production, first of all, you just go through it. This numerical, you just go through it, and then I'll discuss upon what is exactly happening here. Have you seen this numerical? Have you seen this numerical? Yes sir. Yes sir. देख लो अच्छे से देख लो प्लीज. कोई पीपीटी में आपसे शेयर करना भूल जाता सर हूं. ये जो आप न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं सर, इसके जो क्या मतलब बेसिक कैलकुलेशन जैसा पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ये एक्सेल शीट पे भी निकल जाते हैं? हाँ, एक्सेल पे ही निकाला जाता है एक्चुअली. अच्छा सर. एक्सेल में ही निकाले जाते हैं ये सारे कैलकुलेशंस एक्चुअली. ये सारे कैलकुलेशंस लेकर और फर्दर बहुत सारी स्टडीज करने को मिलती हैं. देखो, जैसे सिंपल सी चीज है, जनवरी में हमने देखा, अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्शन यूनिट्स को देखें. अच्छा, मैं आपसे ये चीज बोल रहा था, अगर मैं कभी भूल जाता हूँ आपसे पीपीटी शेयर करना क्लास के बाद, जो कि कई बार ऐसा होता है, मेरी आदत रहती है कि मैं क्लास लूं और उसका फटाफट वीडियो बना के पहले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं, और सेकेंडली आपके साथ तुरंत ही पीपीटी पीडीएफ करके शेयर कर दूं. बट कई बार क्या होता है, ऐसे सडन वर्क आते हैं कि दिमाग से निकल जाता है. तो यदि कुछ, अब जैसे कल मैं कोर्स प्लान में कुछ मटेरियल फिक्स कर रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया एक रिसर्च पेपर, जिस रिसर्च पेपर में आपको कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, है ना. होपफुली यू हैव सीन दैट रिसर्च पेपर. पीडीएफ है वो, 10-15 पन्ने का है, एंड यू विल गेट योर कोर्स मटेरियल इन दैट, है ना. वो एक बेसिकली रिव्यू पेपर है, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी कोर्स मटेरियल ढूंढने के लिए. एज यू पीपल आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड ट्यूटोरियल्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट. और भी तरह तरह के लिंक्स, वेबसाइट लिंक्स, और मैं आपको यूनिट वाइज नोट्स भी शेयर करूंगा. तो थोड़ा बहुत अपने सीआरस के थ्रू मुझे याद दिलाते रहा करो. अगर कभी दिमाग से निकलता है तो डेफिनेटली आई विल डू दैट. हाँ, अब इस न्यूमेरिकल में हम देखें तो इट इज वेरी सिंपल. इफ यू सी इन जनवरी ओनली प्रोडक्शन फिगर्स, इफ यू सी, तो वी हैव प्रोड्यूस्ड 50,000 यूनिट्स. एंड देन इफ यू सी फरवरी में 57,000 we have produced, and then later on at this quarter in March we have produced 63,000 units. Now what it indicates, ये क्या सिखाता है, समझाता है, आप मुझे बता सकते हैं? आपको जो भी समझ में आया मुझे समझा सकते हो आप, है ना. पहले महीने 50,000 प्रोडक्शन हुआ है यूनिट्स का, दूसरे महीने 57,000 का हुआ है,
तीसरे महीने 63,000 का हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? सर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी रिलेटिव टर्म है। प्रोडक्टिविटी ये आपको दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जनवरी में सर प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं। जनवरी में 50,000 था, लेकिन फरवरी में 57,000 था, 57,000 था। मार्च में इट इज गोइंग टू बी 63,000, बट इन व्हाट रेस्पेक्ट, है ना? जो बेस है, जो रेस्पेक्ट है, वो जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी हमको देखना होगा। बिकॉज इन जनवरी यू सी व्हेन यू हैव प्रोड्यूस्ड 50,000 यूनिट्स, यू हैव स्पेंट, रादर आई शुड से, हमने खर्च किया, क्या खर्च किया? मशीन आवर्स खर्च किए, यूज किए, कितने? 5,000। देन फरवरी में यू हैव प्रोड्यूस्ड 57,000 यूनिट्स, तो हमने कितने मशीन आवर्स यूज किए? 6,000। देन मार्च में जब मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया, 63,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, तो 7,000 मशीन आवर्स भी यूज हुए, एंड दैट इज द रिजल्ट। जो आपका प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर है, जनवरी में वो 10 थी, फरवरी में 9.5 थी, और मार्च में 9 हो गई। दिस मीन्स प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूसली कमिंग डाउन। ठीक है भाई, इस महीने मैंने खेत खरीदा, ठीक, 1 एकड़ का मान लो खेत खरीदा, और मैंने 12 बोरे गेहूं निकाले। ठीक है, मैं कोई किसान तो नहीं हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और मैंने 12 बोरे गेहूं निकाले उसमें से, मान लीजिए। ठीक, फिर अगले महीने फिर एक मतलब अगले सीजन में मैंने एक और एकड़ ले लिया काम करने के लिए। फिर मेरे पास कितना हो जाना चाहिए? 12 + 12, अगर उसी मेहनत उसी रेट से जाता हूं तो 24 बोरे। 3 एकड़, अगर तीसरा एकड़ भी ले लिया तो 36, है ना? लेकिन अगर मैं अपने एकड़ को फिक्स रखकर, है ना, अपने एकड़ को फिक्स रख के, माने एरिया ऑफ फील्ड को फिक्स रखकर 12 बोरे की जगह अगर 13 बोरे, 14 बोरे, 15 बोरे, 16 बोरे निकाल लेता हूं, तो दिस विल रिमेन, दिस विल से कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बिकॉज किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, है? किसके रेस्पेक्ट में? एरिया ऑफ द फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो एरिया ऑफ द फील्ड अभी क्या है? वो सेम है। इट डजंट मीन अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। कम इनपुट को बढ़ाकर या इनपुट सेम रखकर अगर मैं आउटपुट अधिक ले पाता हूं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? यस सर। ये यस ऐसा सर। ही है बिल्कुल, जैसे कि मुझे 2 Yes, घंटे sir. अगर पढ़ाई करनी है और मैंने दोपहर में 2 रोटियां खाई हैं, तो मुझे अगर 3 घंटे पढ़ना है तो क्या मैं 3 रोटियां खाऊंगा? नहीं, तो मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाऊंगा, सो ही जाऊंगा। है ना? तो ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होता भी है तो इट विल से कि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। प्रोडक्टिविटी वो है कि मैंने 2 ही घंटे पढ़ा, लेकिन 2 घंटे में जो कोर्स कंटेंट कवर करना था वो ज्यादा कवर किया। पहले मैं 7 पन्ने पढ़ता था, तो आज मैं 10 पन्ने पढ़ पा रहा हूँ। सो दिस इज प्रोडक्टिविटी इन एज ए स्टूडेंट सेंस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? सो फ्रॉम द अबव न्यूमेरिकल, here we say कि for these 3 months production is on, but for the increase during this time period of 3 months, productivity per machine hour has declined, or you can say it is continuously decreasing as the month goes. ठीक, hence the production can be further increased by increasing the productivity or efficiency of our machinery or as a whole system. Now what system carries off? Machine, material and end user या human जो उसको operate कर रहा है। ठीक है, तो increase in production doesn't really means increase in productivity doesn't really means increase in production. Therefore, one should not get confused with both these terms, production and productivity. Now, what exactly, as I told you, we have 3 factors inside the industry responsible for production in a broader sense. We have productivity in terms of labor. I told you it is man, machine, material. Now, what is man? Man here is labor. So in terms of labor, we have to check the labor productivity.
then we have to check the material productivity, and later on we have to check the machine productivity. So all these three aspects, there are some other aspects also, but these are the major aspects. So collectively, if we see these three major aspects, we will conclude that what is productivity as a whole of the system. Okay, so let us see what is the factory productivity. So first one was labor productivity. So here in manufacturing units, we have seen that most of the work is being done by or through the hands of the labor. So measurement of the efficiency of labor is necessary to find out the labor productivity, and it is also essential to find out the efficiency of the same person. Okay, got it? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। है ना? आप पढ़ रहे हो आपके लैपटॉप पे, है ना, आपके मोबाइल फोन पे, तो आपका एक सिस्टम है, सिस्टम का फिर एक कंट्रोल पैनल या स्पैनर है, मतलब जो कंट्रोल पैनल और डिस्प्ले है ना, आप कुछ फीड कर रहे हो और आप एज अ एंड यूजर बैठे हो, तो आपका लैपटॉप भी उतना ही एफिशिएंसी से चलना चाहिए, है ना, स्लो नहीं होना चाहिए। आप करते हो ना, यार सिस्टम मेरा बहुत स्लो हो गया है ना, तो क्या करो यार, जो भी फालतू वाली फाइल से हटा दो, थोड़ा स्पेस कम कर दो, थोड़ा मतलब स्पेस बढ़ा दो, जिससे क्या हो जाएगी, फंक्शनिंग उसकी साउंड हो जाएगी, तुरंत क्लिक करते ही ऑपरेट करने लगेगा, है ना। प्लस जब हम वर्क कर रहे हैं, बीइंग एंड यूजर और ऑपरेटर ऑफ दैट सिस्टम, हमको उस समय हमको एक्टिव रहना चाहिए। वी शुड नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड स्लीपी नहीं होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें लेबर की हैं, एंड यूजर की हैं, तो दैट लेबर और एंड यूजर शुड बी, उसकी एफिशिएंसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी भी होनी चाहिए, लाइक सिस्टम में जब अपन इनपुट देते हैं, दैट इज मटेरियल हियर। ठीक है, तो मटेरियल की प्रोडक्टिविटी जब हम देखते हैं, तो मटेरियल की प्रोडक्टिविटी भी दो तरीके से देखी जाती है। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी भी कैसा होगा, मटेरियल की प्रोडक्टिविटी में इट इज द रेशियो ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, मटेरियल में क्या होता है, एक तो जो मटेरियल हमको मिला, ठीक, तो उसके हो गए दो हिस्से। दो हिस्से कैसे, अब जो आपने यूज कर लिया तो वो हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स, है ना, और एक जो एज पर स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं था, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। सो मटेरियल हमारा जो रॉ मटेरियल आया था वो दो टुकड़ों में चला गया वहां से, है ना। और छोटे मोटे चिप्स भी हैं, डेफिनेटली वो हैं, बट जो मेजर काउंटिंग है वो किस में है, एक तो फिनिश गुड बन गया, है ना, जो कि एफजीएस में चला जाएगा इंस्पेक्शन के बाद, और दूसरा वो स्क्रैप हो गया, वो वेस्ट हो गया, वो एज पर जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमको बोला था उसमें काउंट ही नहीं हुआ। लेकिन मटेरियल तो था, कंपनी की कॉस्ट तो उसमें लगी थी, तो वो कॉस्ट तो काउंट होगी उस लॉट में, उसकी कॉस्टिंग तो काउंट होगी। भाई बीइंग अ रॉ मटेरियल पर्सन, आई हैव इशूड यू और इशूड अ पर्टिकुलर मशीन 60 यूनिट्स, ठीक, लेकिन उस 60 यूनिट रॉ मटेरियल में आपने 50 फिनिश्ड गुड्स बनाए, लेकिन 10 आपने स्क्रैप कर दिए। तो आपके लिए फॉर एन एम्प्लॉय और फॉर अ लेबर, फॉर अ ऑपरेटर ऑफ अ मशीन, उनकी एफिशिएंसी या जो भी मैं कैलकुलेशंस करूंगा वो करूंगा स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से, वो थे 50, तो आपके इंसेंटिव के कैलकुलेशन तो 50 से होंगे। लेकिन जो 10 वेस्ट कर दिए, कंपनी को तो कॉस्ट किया ना वो, है ना, कंपनी को कॉस्ट किया। और हम जानते हैं सिंपल सा बिजनेस का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, है ना, सेलिंग प्राइस या एमआरपी। तो जितना कॉस्ट हाई होगा उतना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, अगर मुझे सेलिंग प्राइस सेम रखना है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस सेम रखना है और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करनी है, तो कॉस्ट वाले काम को तो मुझे कम से कम करना पड़ेगा। क्यों सेलिंग प्राइस में सेम रख रहा हूं, सेलिंग प्राइस में सेम इसलिए रख रहा हूं कि वी आर डीलिंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। Now, when we are dealing in a competitive world, we are not at all allowed to increase the selling price. उसी प्राइस में आप क्या एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू कैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, यू विल बी मच रिक्वायर्ड इन द मार्केट। आप चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे अब्रॉड वाला मार्केट हो, आप खुद जब फोन खरीदते हो, यार मेरे को फोन खरीदना है, कितने वाला खरीदना है भाई, मेरे को 10,000 मेरा ये है बजट है,
10,000 में यू विल कंपेयर ऑल दी ब्रांड्स एंड ऑल दी फीचर ऑफ दी ब्रांड्स, है ना? यार इसमें बैटरी कितनी है, इसमें ये कितना है, उसमें प्रोसेसर कैसा है, उसकी कैमरा क्वालिटी कैसी, कितना पिक्सल ये दे रहा है, कितना वो दे रहा है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी इनटू, है ना? लैपटॉप खरीदोगे, ये खरीदोगे, सो इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड you are not at all allowed to increase the selling price. Even if you can drop it, that is very good. So we know that the cost price plus जो profit is equal to selling price, and what I am saying is to keep the selling price same. If you need to keep the selling price same, you can increase the profit part by reducing the cost, or keeping the cost same, you need to increase the number of production units. तो उस दोनों तरीके से increase the number of units will increase the production volume, increase the production volume will enhance the profit margin. कैसे? अब मेरा खर्चा 10 रुपए का है, पहले मैंने उसी 10 रुपए के खर्चे से 6 चीजें बनाता था, अब उसी 10 रुपए खर्चे से अगर मैं 10 चीजें बनाऊंगा तो मेरा खर्चा विल रिमेन सेम, और पहले से चीजें ज्यादा बनी है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मैं फिर भी कॉस्ट जो 6 रुपए है उसको कम कर दूं और नंबर ऑफ यूनिट सेम बनाता रहूं तो भी मैं प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता हूं। सो देयर आर these are the methods which I can employ to keep the selling price same and increase the profit. Now, तो मटेरियल की हम बात कर रहे थे, तो मटेरियल में दो तरह के हमने टुकड़े देखे थे। एक मटेरियल हमारा फिनिश्ड गुड्स में चला गया, दूसरा हमारा स्क्रैप में चला गया। सो वी विल डिस्कस दिस मटेरियल प्रोडक्टिविटी इन 2 ways. सो मटेरियल की पहला तो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना? मेरी मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी बटे में अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने प्रोड्यूस किए। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ, एज आई टोल्ड यू, waste material, we see it is the ratio of wastage of material to the total material consumed. तो टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड का, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 60 पीस इशू किए, 50 आपके एफजीएस में चले गए, फिनिश हो गए, बिल्कुल एक्सेप्टेड क्वालिटी के थे, लेकिन 10 हमने स्क्रैप कर दिए, उनमें इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पा रही। कई बार इंप्रूव करके भी उनको एफजीएस में ले जाया जाता है, बट दैट हैज नो चांस एट ऑल, वो 10 स्क्रैप हुए। तो टोटल जो मटेरियल मैंने कंज्यूम किया था या मैंने इश्यू किया था, उसमें से 10 जो थे या जितने भी मटेरियल थे, उसका रेशियो क्या, माने वेस्टेज का परसेंटेज क्या और एक्सेप्टेंस वाला परसेंटेज क्या, ये मुझे दोनों देखने होंगे। ये दोनों मेजर टुकड़े हैं मटेरियल प्रोडक्टिविटी के। इसके अलावा चिप्स वगैरह में भी मटेरियल डिसएसोसिएट होता है मेन बॉडी से, तो वो भी है, बट दैट इज अ माइन्यूट पार्ट, सो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और वो स्क्रैप, आपको मैं बताऊं, वो इंडस्ट्रीज वो स्क्रैप बेचती हैं, वो स्क्रैप बिकता है और फर्दर रिसाइकल होके मेटल पीस बन के मार्केट में आता है। दिस टाइप जो मशीन इंडस्ट्रीज है, जो मेटल वर्क करते हैं, वो उसमें यूज हो जाता है आगे जाके कहीं। ठीक है, नाउ कम्स द मशीन प्रोडक्टिविटी। अब मशीन प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 फॉर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। मैं बिल्कुल डीप सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऊपर ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे। सो मशीन प्रोडक्टिविटी 2 तरीके से देखी जाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी ऑफ मशीन। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज, जैसे मेरे कैड लैब में मैं बैठा हूँ अभी, तो कैड लैब में 60 कंप्यूटर है, ठीक, और मैं अभी लैब ले रहा हूँ मान लीजिए, तो व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ दिस लैब? कैपेसिटी ऑफ लैब इज 60, एंड इफ आई एम यूजिंग 40 कंप्यूटर्स ओनली, है ना, या 40 कंप्यूटर्स ही यूज करने लायक है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा होगा? 40/60 into 100। तो हाउ मच कैपेसिटी आई एम यूजिंग इट? 66% ओनली। तो दिस इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, वो मशीन की एफिशिएंसी कैसी है, तो इनको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं। नाउ सिंस एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू मशीन, only that's we know the measurement of the productivity of machine in terms of capacity utilization and efficiency of the machine. Now in terms of capacity, if we talk, so capacity also will come under in percentage. So it is the basic ratio of actual machine hours to the planned machine hours. Okay, so कितने घंटे हमने उसको यूज करना था और कितने घंटे हुआ। अब जो मैंने सिस्टम का एग्जांपल आपको दिया था कि 60 में से 40 सिस्टम ही काम हुए, तो जो हमारा एक्चुअल मशीन आवर्स था वो 0 रहा उस मशीन के लिए, और प्लान्ड आवर्स तो हमने ये किया था कि 2 घंटे की लैब है ना, तो उन 20 कंप्यूटर्स के लिए वो
जो कैपेसिटी परसेंटेज होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो मशीन या वो काम ही नहीं हुआ या वो काम करने लायक नहीं थे, ठीक है। एंड लॉस टाइम, समटाइम्स व्हाट वी प्लान फॉर 2 आवर्स, से तुम्हारी लैब हमने प्लान करी 2 घंटे के लिए, लेकिन इफेक्टिवली हम 2 घंटे उस लैब को यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, है ना। हमने 1 घंटा 30 मिनट ही लैब को यूज किया और 30 मिनट तुमको कुछ मेरे समझाने में लग गए। सो in academic sense it doesn't matter for us, but in production sense every minute counts। यहाँ टाइम भी मनी के हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्योंकि उतने समय अगर मशीन चल रही होती तो आपने प्रोडक्शन किया होता तो आपको उतना रेवेन्यू जनरेट होता। सो इट इज अ रेशियो ऑफ मशीन आवर्स लॉस्ट, जितने टाइम हमने उस मशीन को यूज नहीं किया, अपॉन दी प्लांट मशीन आवर्स, जितने आवर्स अपन ने प्लान किए थे। कितने प्लान किए थे अपन ने लैब के हिसाब से 2 घंटे, लेकिन कितना अपन ने यूज किया उसको 1.5 घंटे के लिए। सो इट इज लॉस टाइम। लॉस टाइम कितना हुआ, है ना, लॉस टाइम कितना हुआ जितना अपन ने यूज उसको नहीं किया, मतलब जितना किया उसको आप माइनस कर लोगे 100 में से, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा कितना यूज हुआ और कितना नहीं, ठीक है। नाउ कम्स द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अब एफिशिएंसी ऑफ द मशीन भी आप 2 तरीके से देखोगे। एक तो एफिशिएंसी है मशीन की कि आपने मशीन को कितना यूटिलाइज किया, है ना, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, कितना आपने प्लान किया था और कितने घंटे यूज कर पाए। और दूसरा, आपने उस मशीन से कितना आउटपुट किया, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए। बहुत सिंपल है। अगर हम कैट लैब में बैठे हैं और मैंने ऑटोकैड की आपको ड्राइंग दी है बनाने को कि भाई 2 घंटे में आपको दे रहा हूँ, आप 2 ड्राइंग्स मुझे बना के दो, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको 2 ड्राइंग्स बनानी चाहिए, और आप कोई 1 बना पा रहा है, कोई आधी बना पा रहा है, कोई 1.5 बना पा रहा है, तो मतलब 1.5/2, 1/2, आधी अपॉन 2, दिस विल बी द से आउटपुट पर यूनिट पर मशीन आवर, ऐसे अपन निकाल लेंगे। लेकिन जब मशीन यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से देखेंगे, मतलब आवर्स के हिसाब से। हमने 2 घंटे का प्लान किया था एंड यू हैव स्पेंट, हाउ मच यू हैव स्पेंट, say somebody has spent only 1 hour, somebody has spent only 1 hour 30 minutes, somebody has spent total 2 hours, तो आपने उतना उस मशीन को दौड़ाया। तो इस दोनों तरीके से बात होती है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन की। सो फर्स्ट वन वाज व्हाट, आउटपुट पर मशीन आवर। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, आउटपुट अपॉन एक्चुअल मशीन आवर, ठीक है, कितने यूनिट्स हुए। दूसरा, machine utilization. What is machine utilization? Machine utilization is output in standard hours upon planned machine hours, है ना, कितने standard hours मैंने यूज किए और मैंने एक्चुअली प्लान कितना किया था। So this way we see the machine's capacity by, you know, machine productivity by checking the capacity in terms of percentage and efficiency of the machine. सबसे पहले भी कोई भी ऑर्डर में लूंगा तो पहले तो मैं कैपेसिटी देखूंगा ना, मेरी कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। अब उस कैपेसिटी में मेरी एक मशीन गड़बड़ चल रही है तो मैं काउंट नहीं कर सकता, या मैं उसको काउंट करूंगा तो ब्रॉडर सेंस में उसको पूरी कैपेसिटी में तो लूंगा, लेकिन उस पे पॉइंट आउट कर दूंगा कि भैया ये रिपोर्ट है, इस हिसाब से ये मशीन कैपेसिटी में तो है लेकिन ये काम नहीं कर रही है या आधा अधूरा काम कर रही है, व्हाटसोएवर इट इज। तो वो पूरी रिपोर्ट बनती है कैपेसिटी की कि कैपेसिटी कैसे वर्क कर रही है। नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, व्हाई वी talk about this much about productivity or increased productivity, what is the basic benefit of it, मतलब मेरे को क्या बेनिफिट है मैं प्रोडक्टिविटी की इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं वो समझूं तो प्रोडक्टिविटी से होगा क्या। आई टोल्ड यू कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है ना, बचपन से हम लोग समझते आ रहे हैं। सो द हायर द प्रोडक्टिविटी, लोअर विल बी द कॉस्ट, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज, यू सी, एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट को मैं सेम रख रहा हूँ और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता हूँ तो भी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा बाय कीपिंग दी सेलिंग प्राइस सेम, ठीक। और अगर मैं कॉस्ट को कम करता हूं भले ही मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन